جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ون سے جمعہ مبارک کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک بار پھر جمعہ مبارک کا سورج طلوع ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے دن اور ہمیشہ ہم جو نیکیاں کریں اس کا ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ آج بھی ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ، دلچسپ موضوع کے ساتھ، معلوماتی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن موضوع کی جانب جانے سے پہلے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے، ہمارے ہم سب کے بہت ہی پیارے محترم و مکرم ڈاکٹر سید محمد اشرفی جیلانی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے ہمارے آپ کے پسندیدہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان سناخہ محمد شہروز قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، اچھا نظر آنا، اچھا دکھنا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں بہت ہی اچھی بات ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اچھا نظر آنے کے لیے بندہ جو کچھ کرتا ہے اسی کو تو فیشن کہتے ہیں، اور بعض ذہین یہ کہتے ہیں کہ ہر فیشن جو ہے وہ ہر کسی پر سوٹ نہیں کرتی۔ تو پھر یہ فیشن کیا ہے؟ کون سی فیشن ہے جسے اپنانا چاہیے؟ کیونکہ آج کل کی فیشن ایسی ہو گئی کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ خواتین کے لیے ہے یا مردوں کے لیے ہے۔ اسی لیے بعض لوگ مزاح کے طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ پہچاننا آج کل مشکل ہے کہ مرد جا رہی ہے یا عورت آ رہا ہے۔ تو آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ کس طرح کی فیشن کرنی چاہیے، اور مرد اور عورت کی کیا فیشن الگ الگ ہوتی ہے، اور کون سی جائز ہے، کون سی جو ہے جس کو اسلام میں ناجائز کہا گیا، اور کون سی اچھی ہے معاشرے کے اعتبار سے علماء اس کا منع نہیں کرتے۔ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو پہلے مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اچھا نظر آنے کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، دین اسلام میں خوبصورت نظر آنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک، بلکہ حدیث طیبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ صحیح۔ میں اکثر یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ کو خوبصورتی پسند نہ ہوتی تو کیوں ناران، کاغان، کالام کے خوبصورت علاقوں کو بنایا جاتا، اور پوری دنیا میں بڑے خوبصورت علاقے ہوتے ہیں۔ تو یہ حسن اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ حسن کو پسند فرماتا ہے، اور حدیث میں ذکر کیا گیا۔ ٹھیک۔ البتہ کچھ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھا جائے کہ جو حسن و جمال کے حوالے سے فیشن جسے آپ کہتے ہیں، اس میں غیروں کا فیشن نہ ہو، چونکہ ہماری ایک اپنی پہچان ہے بینگ اے مسلم، غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔
दूसरा, फिर मुसलमानों के अंदर भी मर्दों की औरतों से मुशाबहत ना हो और औरतों की मर्दों से मुशाबहत ना हो। और इसके अदम जवाज़ की वजह भी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने उन मर्दों पर लानत फरमाई जो औरतों से मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर लानत फरमाई जो मर्दों से मुशाबहत इख्तियार करती हैं। उसके अलावा अगर आप ख़ूबसूरती को इख्तियार करते हैं तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि मैं इस हवाले से एक हदीस ज़िक्र करना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए, उनके बाल बिखरे हुए थे और लिबास को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव ना था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर फरमाया कि क्या अल्लाह ने तुम्हें माल अता नहीं फरमाया? तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मेरे पास माल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि मिन अय्यिल माल, यानी तुम्हारे पास कौन सा माल है? तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मेरे पास हर तरह का माल है, यानी ऊँट भी हैं, गाय भी हैं, बकरियाँ भी हैं। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रब ने तुम्हें माल अता फरमाया है वो ये चाहता है कि फल युरा असरुहा, कि उस माल का असर जो है वो तेरी ज़ात में नज़र आए। अच्छा, यानी जब उसने माल दिया है तो फिर उसकी तहदीस नेमत भी होनी चाहिए कि आप जो है वो अपने आप को साफ़ सुथरा और निखरा हुआ रखें। क्योंकि आप जानते हैं कि बिखरे हुए बालों को देखकर लगता है बाज़ औक़ात कि इनके ख़यालात भी बिखरे हुए होंगे, तो इसलिए अपने आप को साफ़ सुथरा रखा जाए। एक आयत में ज़िक्र कर देता हूं। लेकिन अच्छा नज़र आना, इसे फैशन कह सकते हैं? यानी उर्फन कह दिया जाता है, लेकिन अगर इसे फ़ैशन कह भी दिया जाए तो इस्लाम मुतलक़न फ़ैशन से मना नहीं करता, बल्कि फ़ैशन के मामलात सुपुर्द किए गए हैं सकाफ़त को, कि आपकी जो सकाफ़त है अगर वो शरीयत से मुतसादिम नहीं हो रही और उसमें तकब्बुर नहीं आ रहा तो बिल्कुल दुरुस्त है, उसे इख्तियार करना चाहिए। मैं जो आयत अर्ज़ करना चाह रहा था वो ये थी कि अल्लाह ने फरमाया, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहिल्लती अखरजा लिइबादिही, कि कौन है जो हराम करे उस जीनत को जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए जाहिर फरमाई। यानी जब जीनत को अल्लाह ने जाहिर फरमाया है तो किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो उसे हराम करार दे। लिहाजा अगर कोई अपने आप को साफ़ सुथरा रखता है, माल है तो अच्छा लिबास पहनता है या महंगा लिबास पहनता है, तो शरई तौर पर इसमें कोई क़बाहत नहीं है। बस ये है कि औरतों से मुशाबहत ना हो, दूसरी अक़वाम से मुशाबहत ना हो और तफाखुर नहीं होना चाहिए। इज्ज़ के साथ इन चीज़ों को इख्तियार किया जाए तो शरअन कोई क़बाहत नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर ये कहा जाए कि फ़ैशन अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, ऐसा ही है? और अगर है तो फिर बुरी फ़ैशन क्या है और अच्छी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू आपने बड़ा दिलचस्प रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि फ़ैशन करने वाले नाराज़ हो जाएं। नाराज़ हो जाए, हाँ। देखिए, इस्लाम एक पाकीज़ा दीन है, सही, महज़्ज़ब दीन है। उसने मुसलमानों को पाकीज़ा साफ़ सुथरा रहने का हुक्म दिया। फ़ैशन उर्फ़ आम में, यानी फ़ी ज़माना जो फ़ैशन जिसे कहा जाता है कि जिसे लोग पसंद करें। अब आप देखते हैं ना, अजीब व गरीब किस्म के लिबास, वो क्या फ़ैशन है, बाल हेयर स्टाइल मुख्तलिफ, जूते, कपड़े आप देख लें कि पैंटों में वो स्टिकर लगे हुए, क्या है यानी जो फैशन नहीं, पैंट पहनी भी है और फाड़ भी दी है, फाड़ भी दोनों काम हो रहा है। जी हाँ, ये तो बल्कि एक साहब ने जो ये काम करते हैं मुझे बताया कि बाकायदा उसको फाड़ा जाता है। तो इसे हम ये फैशन, ऐसे बुरी फैशन कहेंगे? नहीं, अब आप देखें, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि फैशन उर्फ़े आम में उसे कहा जाता है जिसे लोग पसंद करें। हालांकि मुसलमान के लिए यह होना चाहिए जिसे अल्लाह ताला पसंद करे, जिसे उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करे, वो हमारे लिए बेहतर। लोग पसंद करें तो लोग तो पता नहीं क्या क्या पसंद करते हैं। तो इसलिए अब जहाँ तक अच्छा फैशन बुरा फैशन, उसका ताल्लुक ये है कि अगर किसी को मतलब लोगों को पसंद आ गया तो ये बहुत अच्छा फैशन है, और वो ओल्ड हो गया नया आ गया तो कहते हैं ये बुरा फैशन है। हालांकि हमारे लिए सबसे पहली चीज़ ये है, जब कोई नया फैशन आए हम ये देखें कि उससे लिबास ऐसा हो कि इंसान की सतरपोशी हो, औरत के लिए लिबास ऐसा हो कि उसके लिए हिजाब पर्दे का उसमें एहतमाम हो। अगर कोई ऐसा है कि जिससे जीनत जाहिर हो रही है या जिस्म जाहिर हो रहा है या वो इस्लाम से मुतसादिम है तो वो फिर मुनासिब नहीं। यानी हर नई आने वाली फैशन को उसके लिए पैमाना हम ये रखें, और ये ना रखें कि पब्लिक पसंद करे, लोग पैमाने ये रखें कि इस्लाम किसे पसंद करे। ठीक है। अच्छा मतलब आजकल फैशन डिज़ाइनर्स भी हैं, तो खैर हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से मुकम्मल तौर पर जाएंगे तो उसमें तो काफ़ी चीज़ें निकल आएंगी, लेकिन फ़ैशन डिज़ाइनिंग का काम करना कैसा है? अगर मैं एक ऐसा फ़ैशन डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ जो सकाफ़ती, इखलाक़ी, माशरती, दीनी सारे एतबार से एक मोतदल किस्म की फ़ैशन जो है वो अपनाता है या लोगों को इस पर राज़ी करता है, बनाता है, तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग का काम ये जायज़ है? इसमें इसराफ़
या बहुत ज़्यादा दुनियावी चीज़ें तो नहीं आ जाती? देखिए, फ़ी नफ्सी ही फैशन डिज़ाइनिंग का जो काम है ये नाजायज़ नहीं है, नहीं। बल्कि ये देखा जाएगा कि उसकी डिज़ाइनिंग की नौइयत क्या है। अगर उसकी नौइयत फ़हश और ओरियानियत वाली है तो अंडरस्टूड बात है कि हुर्मत आएगी, और अगर उसकी नौइयत दायरा शरीयत में रहते हुए आती है, मसलन कोई ऐसा काम करता है कि वेस्ट कोट बनाता है, अच्छे ड्रेसेस बनाता है और वो अलग चीज़ लेकर आता है जो दौर हाजिर के एतबार से मार्केट में इन भी होती है, तो शरअन उसमें कोई कबाहत नहीं है। सही। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर देखा जाएगा कि देखें, ख़वातीन के हवाले से मैं अर्ज़ करूँ कि हर दौर में ख़वातीन की इज़्ज़त व इस्मत से खेलने के ऐसे रास्ते इख्तियार किए गए कि उन्हें ख़बर भी ना हो और उससे खेल भी लिया जाए। मसलन दौर हाजिर के अंदर जब इस इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिला तो उसमें तरजीहाती बुनियादों पर इन उमूर को मलहूज़ निगाह रखा गया कि जिन चीज़ों या जिन आज़ा को इस्लाम ने छुपाने का हुक्म दिया था, ऐसा ड्रेस बनाया जाए कि उनकी हैअत और उनकी बनावट ज़ाहिर हो। अच्छा, फिर यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे जी ये तो मौलवी साहब हैं, तो मौलवियों वाली बात कर रहे हैं। अपने दिल से सवाल करें कि क्या उसकी वजह से गैर महरमों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की नीयत होती है या नहीं होती? टाइट्स पहने जाते हैं, उसके अलावा बहुत सारे लिबास हैं। तो अंडरस्टूड बात है कि चूँकि इसके अंदर फहश को और ओरियानियत को फ़रोग़ देना नज़र आ रहा है, तो इससे मना किया जाएगा। और इसमें ख़वातीन को भी चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ों से कनारा कशी इख्तियार करें, क्योंकि इस्लाम ने जो उन्हें फ़िक्र अता फरमाई है उसमें उन्हें इज़्ज़त और बुलंदी मिलती है। ठीक, प्रोग्राम जारी है। जुमा मुबारक। फैशन करना कैसा, ये हमारा मौजू है। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। जुमा मुबारक, जुमा मुबारक, जुमा मुबारक, जुमा मुबारक। वेलकम बैक। एक बार फिर जुमा मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फैशन करना कैसा हमारा मौजू है, इस पर गुफ्तगू हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि दौर के एतबार से फ़ैशन तब्दील होती रहती है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पैंट आई, पैंट के बाद जीन्स आई, फिर अब जीन्स फटी हुई आ गई, अब आगे लगता है कि आधी हो जाएगी वो। तो दौर के एतबार से जब फैशन तब्दील होती है तो क्या ये तो मैंने मिज़ाह में कह दिया, हर दौर के तकाज़े के एतबार से फ़ैशन को तब्दील करना ये ठीक है कि हम भी तब्दील होते रहें, अगर सही लिबास भी है तो? कि हम कहें नहीं ये तो आबा व अजदाद से एक चल रहा है, या इस्लाम की तारीख़ में ये लिबास चल रहे हैं, या हमारी सकाफ़त में ये फ़ैशन रही हैं, तो मैं तो यही इस्तेमाल करूँगा, या दौर के एतबार से कुछ ना कुछ तब्दीली होती रहनी चाहिए? देखिए, तब्दीली जो है वो इंसान की एक फितरी ख्वाहिश या जो भी आप कहें, इंसान जो है वो चाहता है कि तब्दीली हो। जैसा कि अरस्तू ने कहा था कि मैन इज सोशल एनिमल, ही ऑलवेज वांट सम चेंज इन हिज लाइफ। वो चाहता है कि कोई ना कोई तब्दीली आए। अच्छा, एक ही चीज़ अगर चलती रहेगी तो ज़ाहिर है लोग कहेंगे ये तो बुरा ना होगा, अब कोई नई चीज़, एक फितरी ख्वाहिश होती है कि नई चीज़ आए, तो इसीलिए ये फैशन तब्दील किए जाते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि फिर वही बात जो हम पहले कह चुके हैं, मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कि जो भी फैशन आए हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये इस्लाम से मुतसादिम तो नहीं, कहीं ऐसे तो नहीं कि औरतों का लिबास ऐसा हो कि जो इस्लाम ने मना किया और वो फैशन के तौर पर आ गया कि हमने कहा नहीं ये नया फैशन आया हम इसे इस्तेमाल करें, या मर्दों के कपड़ों का ऐसा स्टाइल आया कि जो जिसमें सतरपोशी नहीं है, जो इस्लाम से मुतसादिम है, और हम बड़े खुश होकर, और होता भी यही कि नई चीज़ आई है, नहीं जी ये ले ले, उसमें इन्होंने इधर वो बटन लगा दिए, या किसी में जेबें बहुत ज़्यादा कर दी, या कुछ करके ये बेहतरीन, या उसमें कैसा भी लगेगा नहीं नया फैशन है। तो जो भी फैशन आए तब्दीली तो होगी, वो तो ज़ाहिर ज़माने के हिसाब से। मिसाल के तौर पे आपने जो लिबास पहना बड़ा खूबसूरत है, अब हो सकता है आज से 20 साल पहले इस तरह का जुबा या इस तरह की यही लिबास इस तरह ना पहना जाता हो। वक्त के साथ साथ इसका कलर चेंज हुआ, फिर वक्त के साथ साथ इसकी कढ़ाई चेंज हुई, फिर वक्त के साथ साथ इसमें डोरियां आ जाएंगी। मतलब ये जो तब्दील होता है वो ठीक है। अर्थ क्या, तब्दीली तो होगी, तब्दीली तो करना ठीक है, वो तो एक ज़माने के हिसाब से तब्दीली आती है। कपड़ों में भी तब्दीली आती है, कपड़े की क्वालिटी में भी आती है, उसके जो बनावट में भी आती है, लेकिन ये तब्दीली मना नहीं है। तब्दीली उस वक्त वो है कि अगर वो इस्लाम से मुतसादिम हो तो फिर हमें ये देखना है कि हमें वो इस्तेमाल नहीं करें, और अगर हम देखते हैं कि कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है तो आप उसको इस्तेमाल करें। और साहब कैसे पता चले कि बालों का ये स्टाइल जो है ये फैशन जो है बालों की ये ऐन इस्लामी है? क्योंकि जुल्फ़े रखना भी साबित है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जुल्फ़े रखने वाला
جا رہا ہو تو پیچھے سے خاتون معلوم ہوتا ہے. تو جو فیشن کے طور پر بڑے بال رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم رکھیں تو اعتراض ہے, اور ویسے زلف کو یا زلفیں بڑھانے کو آپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہیئر اسٹائل کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اس بات کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھا جائے کہ جیسے جیسے آپ علاقے بدلتے چلے جاتے ہیں فیشن بدلتا چلا جاتا ہے. آپ ہمارے ملک پاکستان میں سفر کرتے چلے جائیں, صوبہ بدلتا ہے تو فیشن بدلتا ہے. اب اگر انسانوں کے لیے اس بات کو متعین کر دیا جاتا کہ جو فیشن یا جو انداز, چاہے وہ بالوں کا ہو چاہے وہ لباس کا ہو, عرب میں رائج ہے, پوری دنیا میں یہی ہوگا, تو پھر اس میں وسعت نہ ہوتی. یہ ہمارے دین کا حسن ہے کہ اسے اتنا وسیع کیا گیا کہ جو فیشن کے معاملات ہیں وہ سپرد کر دیے گئے ثقافت کو, کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ جو چیز چل رہی ہے آپ اس طرح رہیں. صرف 2-3 چیزیں بیان کی گئیں کہ ان امور کا خیال رکھ لیا جائے, جن میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو آپ فیشن اختیار کر رہے ہیں یا جو آپ زینت اختیار کر رہے ہیں اس کی مشابہت عیسائیوں سے نہ ہو, کہ آپ کو کوئی دیکھے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ عیسائی ہے, آپ کو کوئی دیکھے تو اس زینت کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ یہودی ہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مجوسی ہے. ایک اس چیز کا خیال رکھا جائے. دوسرا یہ ہے کہ وہ زینت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ کوئی دیکھے تو دور سے یہ سمجھے کہ کوئی عورت جا رہی ہے حالانکہ وہ مرد ہے, یا کسی عورت کو دیکھے تو یوں لگے کہ یہ مرد جا رہا ہے. اس چیز کا خیال رکھا جائے. اور تیسری چیز جو حدیث سے مستفاد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جذبہ تفاخر نہ ہو. لہذا آپ جو مروجہ فخر نہ ہو, کسی کو حقیر جاننا نہ ہو, آپ بس اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ آپ کو اچھا لگتا ہے. ہمارے ہاں جب ہم زینت پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں تو چونکہ اسے لیا جاتا ہے دیگر اقوام سے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ کچھ ایسے لباس ہیں جو مغرب نے شروع کیے, اور وہی لباس پہن کر وہ ہمارے مشرق میں آئے تو انہیں دیکھ کر اجنبی نہ سمجھا گیا جی یہ ان کا لباس ہے. لیکن ہمارے یہاں کا ایک فرد جبہ پہن کے جو عربوں کا لباس ہے وہ مغرب میں چلا گیا تو وہاں کی گلیوں کے اندر, وہاں کے بازاروں میں, وہاں کی مارکیٹس کے اندر اسے جو ہے وہ مشکوک نگاہوں سے دیکھا گیا اس کے لباس کی وجہ سے. میں کسی انگریز کو دھوتی پہنتے ہوئے نہیں دیکھا. جی, اب میں جو سوال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے لباس کی وجہ سے اسے مشکوک بنا دیا. آپ ہمارے یہاں آئے تو آپ کو مشکوک نہیں سمجھا گیا, ہمارے یہاں کا لباس پہنا ہوا وہاں گیا تو آپ نے اسے مشکوک سمجھ لیا. تو اب بتائیے کہ وسیع النظر ہم ہیں یا آپ ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو افکار پنپتی ہیں یہ وہیں پر پنپتی ہیں. لیکن میں زلف کے بارے میں بتائیں کہ دونوں میں ہے, فیشن میں بھی ہے جو جدید جسے کہتے ہیں, اور ہمارے ہاں احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے. تو کیا کیا جائے, رکھی جائے نہ رکھی جائے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زلفیں رکھنا سنت نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم ہے. جب ہم نے اسے سنت قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سعادت کی بات تو ہے, لیکن اگر بالفرض کوئی نہیں رکھتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. لہذا اگر اسے کوئی مخصوص ہیئر اسٹائل پسند ہے اور اس میں غیروں کے ساتھ مشابہت نہیں ہے تو وہ بالکل رکھ سکتا ہے. لیکن اس میں جو بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ کندھوں سے نیچے تک ان کی زلفیں جا رہی ہوتی ہیں اور وہ اسے صوفیت بھی قرار دے رہے ہوتے ہیں, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے, تو انہیں یہ کہا جائے گا کہ یہاں پر چونکہ ممانعت آ رہی ہے تو آپ اپنے عمل کو درست کریں. ڈاکٹر صاحب, آپ ویسے خانقاہی نظام میں کیا کہتے ہیں اگر کوئی بڑے بڑے بال رکھے اور یہ کہے کہ میں صوفی ہوں, فقیر ہوں, تو چونکہ ایک یکدم جھڑکنا بھی نہیں چاہیے, کیا کرتے ہیں؟ لہجہ آپ کا کیا ہوتا ہے, سمجھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, جیسے کہ شرعی بات بتائیے حضرت. دیکھیے, خانقاہی نظام میں یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع کرنا پڑتا ہے اور کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر آپ زلفیں رکھیں تو اتنی نہ ہو کہ بالکل آپ کے کندھوں تک یا اس سے نیچے تک بال جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بال بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ بالکل سنت کے مطابق رکھیں اور اس کو سنواریں باقاعدہ, جیسے کہ ہوتا ہے خیال بھی رکھیں اس کا. ہاں, اس کا خیال بھی رکھیں. اب جیسے بال بکھرے ہوئے تو اب اس میں یہ پتہ چلے گا یعنی کہ آدمی تو عجیب مجنون سا لگ رہا ہے, یہ کوئی پاگل دیوانہ لگ رہا ہے, ایسی کیفیت بھی نہ ہو. اگرچہ صوفیات میں ایک ملامتی گروہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس قسم کے وہ اختیار کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں اس طرح سمجھیں, لیکن وہ ایک الگ میٹر ہے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جو لوگ رکھتے ہیں تو ان کو ہم یہی بتاتے ہیں کہ آپ کا لباس, آپ کے بال, آپ کا پورا چہرہ, آپ کی شخصیت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونے چاہیے. اچھا, آپ نے جو بات شروع میں کہی مفتی صاحب سے سوال میں کہ وہ جا رہا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ جا رہا ہے یا جا رہی ہے, تو اگر زلف رکھنے والا ٹوپی اوڑھ لے گا تو یہ بھی ایک سنت ہو جائے گی, جا رہا ہے, اور پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ جا رہا ہے. صحیح, بہت خوب. چلتے ہیں بریک کی جانب, بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. جمعہ مبارک, جمعہ مبارک, جمعہ مبارک,
خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ ٹی وی ون سے آپ دیکھ رہے ہیں. موضوع ہمارا آج کا ہے فیشن کرنا کیسا, اور بہت ہی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. اچھا مفتی صاحب, رنگوں کا بھی تعلق ہے فیشن سے؟ میں سفید نہیں پہن سکتا, خاتون اورنج نہیں پہن سکتی, مرد بلو نہیں پہن سکتا, خاتون بلیک نہیں پہن سکتی, ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں جشرعی طور پر لباس کو رنگوں کے ساتھ شریعت نے متعین نہیں کیا ہے. اچھا. تمام رنگ اللہ نے پیدا فرمائے ہیں, اور جسے جو رنگ پسند ہے وہ اس لباس سے ملبوس ہو سکتا ہے. البتہ اگر آپ کے عرف میں کوئی ایسا رنگ ہے جو متعین ہو گیا خواتین کے لیے, اور اسے دور سے دیکھنے میں وہ لباس خاتون لگتا ہے, تو اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے فقہائے کرام نے بعض مخصوص ایام میں مخصوص رنگ پہننے سے منع فرمایا. وہاں پر بھی ممانعت رنگ کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ دیگر کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ہے. تو اصل جو علت ہے وہاں پر وہ مشابہت ہے. تو اس لیے رنگوں کے حوالے سے کوئی ایسا نہیں کہ مطلقاً منع کیا گیا ہو. مطلب ڈارک کلر اگر مرد پہنے تو عجیب سا لگ رہا ہو, اگر تو اسے ہم غیر شرعی کہیں گے یا ثقافت کے سے متصادم کہیں گے, یا اچھا نہیں لگتا؟ دیکھیں عدم جواز کے لیے عجیب سا لگنا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات کچھ اس طرح کی ڈریسنگ کر لی جاتی ہے کہ وہ عجیب و غریب لگ رہی ہوتی ہے, لیکن ہم اسے ناجائز نہیں کہہ رہے. ناجائز ہونے کے لیے وہی ہے کہ کوئی مشابہت آ رہی ہو, خاصہ ہو کسی کا, تو وہاں پر عدم جواز کا حکم کیا جائے گا. محمد شہروز قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں, کلام پیش کیجیے. وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھی کہ مانگنے کو تیرا آستا بتا, یا تجھے حمد ہے خدا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. بہت وہ کنواری پاک مریم, وہ نفخت فیہ قدم, وہ کنواری پاک مریم, وہ نفخت فیہ قدم, ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جا, یا وہی سب سے افضل آیا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. یہی بولے سدر والے چمن جہاں کے تھلے, یہی بولے سدر والے چمن جہاں کے تھالے, آقا سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, آقا سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. ارے خدا کے بندو, کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ارے خدا کے بندو, کوئی میرے دل کو
न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। हमें रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया। माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, अंगूठी या घड़ी ऐसी लगे कि वो ख़वातीन भी ऐसी पहनती हों जैसे इसमें ज़ेवरात की तरह कोई हीरे वगैरह लगे होते हैं, या हाथ में वैसे ही कोई ऐसी चीज़ पहनना कि जैसे ब्रेसलेट लगे, या गले में ऐसी चीज़ पहनना मर्द का कि जैसे हार लगे, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि बाज़ हमने देखा है कि अल्लाह लिखी हुई चीज़ भी पहनते हैं, मोहम्मद या मोहम्मद लिखी हुई चीज़ या रसूलुल्लाह लिखी हुई चीज़ भी पहनते हैं, इसी तरह खुलफाए राशिदीन या अहले बैत का नाम लिखे होते हैं। तो ये ज़ेवरात में आएगा, ज़ीनत में आएगा, फ़ैशन में आएगा, जायज़ नाजायज़ की बात इसमें होगी या सवाब की नीयत से आप जायज़ कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आजकल ये फैशन ही चल रहा है, यानी इसका फैशन ही कहेंगे। नौजवान लड़के लड़कियां भी वो एक गले में एक चेन डाली हुई है, उस पर अल्लाह लिखा हुआ है या मोहम्मद लिखा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या खुलफाए राशिदीन का नाम, या आप सही कह रहे हैं अंगूठियों पे इधर उधर। सबसे पहली चीज़ ये कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला का नाम इसमें और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के इसमें मुबारक, एक तो वैसे ही लटकाना ही गलत है। अच्छा, अब फिर दूसरे के उसको इस तरह करना, अब आदमी बेदहानी में वॉशरूम भी जा सकता है, किसी जगह भी जा सकता है, तो इसके लिए बिल्कुल ममानियत है कि ये लिखा हो, गले में लटका हो, ताज़ीम के खिलाफ नजर ये ताज़ीम के वैसे भी खिलाफ है। अच्छा, जहाँ तक ये बात है कि ब्रेसलेट या गले में कोई चैन मर्दों के लिए डालना ये बिल्कुल गैर मुनासिब है, इसलिए कि ये सब ज़ेवरात में आता है। अच्छा, मर्द के लिए क्या है कि अंगूठी वो पहन सकता है, घड़ी वो पहन सकता है, लेकिन इस किस्म की अंगूठी या घड़ी पहनना कि जो औरतों से मुशाबहत रखती हो। मसलन उसने क्या ऐसी वो पहन ली कि जिसमें हीरे लगे हुए, हीरे तो नहीं कह सकते, और बहुत जैसे डायमंड जैसे कह सकते हैं, तो वो चीज़ें अगर हैं कि यानी देखने से लगे कि ये मुशाबहत हो रही है ख़वातीन के साथ, तो ऐसी कोई भी चीज़ यानी ज़ेवरात में ही नहीं, वैसे भी कि वो जो है उसकी ममानियत है, उससे इज्तनाब करना चाहिए। यानी आप कहते हैं कि ये मुक़द्दस नाम हो तो ज़्यादा मना करेंगे, वो तो ज़्यादा मना है। एहतराम का मसला भी आ गया, ज़ेवरात वाला हो, और ऐसे वो चल रहे हैं आजकल, अल्लाह लिखा हुआ गले में डाल के फिर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है जुमा मुबारक के साथ। फ़ैशन करना कैसा हमारा मौजू है। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताएं कि सारी बातें हमने कर ली, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो ज़ेवरात में भी नहीं आती और शायद इसमें बहुत ज़्यादा मर्द और औरत वाला मामला भी नहीं आता। मिसाल के तौर पे ये ग्लासेस हैं, अब वो ग्लासेस भी टेढ़े और पीले लाल 4 कलर के, यहाँ से कोने निकले हुए चौड़े, ये भी आ गए। इसको आप क्या कहेंगे? ना ये इसमें हम मुशाबहत वाली बात करते हैं, ना ज़ेवरात वाली करते हैं, लेकिन अच्छा नज़र आता है, आजकल फ़ैशन है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे, करनी चाहिए या नहीं? देखिए इसमें हुक्म वही है जो इब्तिदाअन बयान किया कि शरीयत मुताहरा ने वुसअत अता फरमाई है, और इसमें चूँकि मुशाबहत नहीं है तो इस तरह के गिलासेस को भी हमारे यहाँ नाजायज़ करार नहीं दिया जाता। की भी डिज़ाइन हो, बिल्कुल, उसमें बस वही शर्त होगी कि मुशाबहत नहीं होनी चाहिए। जैसे ग्लासेस के अंदर भी होता है कि बाज़ ऐसे डिज़ाइन हैं कि जो ख़वातीन ही के साथ ख़ास हैं, मर्दों के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होते, तो फिर वो ना लिए जाएं। उसके अलावा आप जिस भी तरह के गिलासेस बनाना चाहें, शरीयत मुताहरा आपको रुख्सत अता फरमाती है। यानी आप ये चाहते हैं कि मैं अच्छा नज़र आऊँ और गुड लुकिंग जिसे कहते हैं, तभी एक तकाजा होता है और बाज़ लोगों की आदत होती है, तो शरीयत इस पर बिल्कुल पाबंदी नहीं लगाती। इसी कैटेगरी में जैसे कीचेन है, अच्छे कीचेन लोग रखते हैं जी, उसमें कोई ममानियत आप करेंगे कि इसकी तस्वीर ना हो
ऐसा बना हुआ ना हो, इस धात की ना हो, आप कहेंगे? देखिए, चूंकि तस्वीर की तो असलन मुमानात है और उस पर नुसूस मौजूद हैं, मगरमच्छ तो उसमें जैसे तो बना हम- हुआ हो, स्टील कोई का। भी जानदार हो, कोई भी जानदार की तस्वीर हो, तो उससे तो मना किया जाएगा। उसके अलावा जैसे कुछ लिखवाया हुआ होता है या खूबसूरत महंगे किचन होते हैं, वो आप रखते हैं, शरई तौर पे कोई मुज़ायका नहीं। यानी बाज़ लोगों की आदत होती है लग्जरी लाइफ जिसे कहा जाता है कि जी हर चीज़ ब्रांडेड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तलाश करते रीगल चौक रहते पे हैं। जो मिलता है ना 1.5 रुपये वाला किचन, वही इस्तेमाल हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रखता हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कहीं पर कोई ऐसा अमल ना हो रहा हो, मसलन उस पर किसी ने अल्लाह और रसूल का नाम लिखवा दिया, तो अब बाज़-औक़ात एहतियात नहीं किया जाता, जेब में रख लिया जाता है, वॉशरूम ले जाते हैं, तो बेअदबी है। सही। फिर इसी तरह जानदार की, तो चूँकि उस पर नुसूस मौजूद है तो उससे मना किया जाएगा। उसके अलावा आप सोबर, अच्छी महंगी वाली चीज़ रिस्क हलाल से रखते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं। ठीक। अच्छा, ये आजकल तस्बीह जो हाथ में रखते हैं, इसको भी पढ़ने के लिए रखें तो अच्छा है, लेकिन इसको भी अगर मैं चाहूँ कि जिस तरह रंग का मैंने कपड़ा पहना हुआ है या ड्रेस पहना हुआ है, इस कलर की तस्बीह हो, दावत में जाने के लिए अलग तस्बीह हो, मस्जिद में जाने के लिए अलग हो, घर में अलग हो, तो ये नीयत रखना कि मैं अच्छा नज़र आऊँ। अगर ज़िक्र इलाही भी कर रहा हूँ तो इसमें साथ साथ फैशन भी हो जाए। मना करेंगे या हाँ कहेंगे? देखिए, इबादत जो है ना वो छुप के करनी चाहिए। मतलब जेब में पढ़ते रहें, क्या करें? नहीं, या तो आप इतनी छोटी रखें मुख्तसर, क्या वो पता ही ना चले कि आप पढ़ भी रहे हैं और किसी को पता नहीं चले। और अगर आप वैसे रखें कि भाई जिस कलर का मैं लिबास पहनूं उसी कलर की अच्छा तस्बीह नज़र हो। आए, मतलब इसलिए। नहीं, अच्छा नज़र आना एक अलग बात है। अगर आप तस्बीह ना रखें तब भी आप अच्छे नज़र आएंगे। मतलब उसमें एक रियाकारी का एक शायबा एक पैदा हो जाता है कि भाई आदमी बातें भी कर रहा है, तस्बीह भी चल रही है, तो एक काम हो सकता नहीं, या तो तस्बीह चले या बातें चले। तो ये चीज़, अगर उसमें ऐसी चीज़ है कि लोग मुझे समझें कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, मुझे वो तो वो गलत है, वो गलत। रियाकारी। वैसे अब अगर आप हाथ में ले लें तो और हाथ में अच्छी तस्बीह खरीदें तो उसमें भी कोई मुज़ायका नहीं। खरीदने को है नहीं, आप खरीद के किसी को तोहफे में भी दे दें, आप हाथ में भी रख लें, लेकिन पढ़ें अगर तो वो आप छुप के पढ़ें। ठीक है। रूहानी गुलदस्ता डॉक्टर साहब कौन सा बयान करेंगे आज वजीफ़ा? कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह रहमान की एक आयत, फ़बिअय्या आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मशहूर मारूफ आयत है, सब जानते हैं। बुज़ुर्गान दीन ने फरमाया कि शब जुमा 1000 मरतबा अगर इसका विर्द किया जाए और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा के साथ, तो किसी भी मसले के लिए, यानी इसके लिए कोई तखसीस नहीं है, कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, उसके लिए खुलूस दिल के साथ ये पढ़ी जाए और इसके बाद दुआ की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर वो परेशानी को हल फरमाते हैं। माशा। मुझसे आखिरी सवाल मुख्तसर जवाब मिल जाए। आजकल शॉर्ट का काफ़ी रिवाज है मर्दों में, पहनना चाहिए आपके ख्याल से? इसको फैशन समझ के ज़्यादा किया जा रहा है, इसमें कोई सहूलत तो है नहीं ऐसी कोई चीज़ कि चलो हवा आ रही है तो पहन लिया, लेकिन इसको फैशन के तौर पे किया जा रहा है। आप क्या तजवीज़ देंगे या राय देंगे या एडवाइस करेंगे कि इस रुझान का बढ़ना ठीक है या इसको छोड़ देना चाहिए? देखिए, घुटने जो हैं ये सितरे औरत में दाखिल हैं, नाफ से लेकर घुटनों तक ये सितरे औरत है और घुटने जो है वो सितरे औरत में शामिल हैं। तो अब इसमें चूंकि घुटने नज़र आ रहे होते हैं तो शरई तौर पर ये नाजायज़ है, दिखाना भी नाजायज़ है। हुए भी होते हैं। जी हाँ, बाज़ औक़ात वो फिर ख्याल, ऐसे लोग मतलब इतने मुत्तकी तो होते नहीं हैं कि वो ख़ास तौर पे ख्याल रखें। फिर नमाज का वक्त हो गया तो नमाज का वक्त हो गया तो चूँकि इसमें सितरे औरत का ज़ुहूर हो रहा है तो ये नाजायज़ हो जाएगा। अलबत्ता उससे नीचे तक कोई वॉक करने के लिए पहन लेता है कि आधी पिंडली तक मौजूद हैं और वो सितरे औरत का ख्याल रखता है बैठते हुए कि मेरे घुटने ज़ाहिर ना हो, तो बिल्कुल वहाँ पे भी रुख्सत मौजूद है। यानी जहाँ जहाँ पर हम मुमानात की बात करते हैं या नाजायज़ होने की बात करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें बुनियादी होती हैं। पहली चीज़ गैर मुस्लिमों के साथ मुशाबहत अगर वो हो रही है तो नाजायज़ होगा। दूसरी चीज़ औरतों के साथ मुशाबहत अगर वो हो रही है तो नाजायज़ होगा। और तीसरी चीज़ किब्र, कि आप उसे पहनकर जज्बा तफाखुर से सरशार हो रहे हैं या जैसा कि जिक्र किया गया कि रियाकारी के इरादे से आपने वो अमल किया है तो बिल्कुल नाजायज़ होगा। अगर इन तीनों चीज़ों का वहाँ पर वजूद नहीं है और किसी हुक्म शरई का तर्क लाजिम नहीं आ रहा तो फिर वहाँ पर बिल्कुल जवाज़ होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का। मोहतरम नाज़रीन, फ़ैशन करना कैसा, ये हमारा आज का मौजू था। दिलचस्प मौजू है और काफ़ी तवील भी हो सकता था, लेकिन जितना वक्त हमारे पास था इसमें गुफ्तगू की। और आजकल के एतबार से इसका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि मुशाबहत ना हो, पता नहीं चलता कि ये किसके लिए है। और बाज़ चीज़ें ऐसी आ गई हैं, बल्कि अब तो अक्सर चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि जब दुकानदार से पूछें कि ये मर्द के लिए है या औरत के लिए, तो वो ये कहता है दोनों के लिए। तो थोड़ा फ़र्क तो होना चाहिए कि ये मर्दों के लिए, ये औरतों के लिए। फिर जो मैंने आखिरी सवाल मुफ्ती साहब से किया वो मैंने जानबूझकर किया, क्योंकि आजकल ये देखा गया है
کہ یہ شارٹ پہننے کا مردوں میں رواج بہت زیادہ ہے. سمجھتے ہیں کہ شرم و حیا کا معاملہ مردوں کے لیے کوئی بھی نہیں ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. پھر آپ یہ سوچیں, آپ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, بہن کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, ماں کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, پڑوس سے آپ گزر رہے ہیں, محلے سے گزر رہے ہیں, تو سارے آپ کو دیکھ رہے ہیں, خواتین بھی ہیں اس میں, تو کوشش کریں تھوڑا سا بڑا پہن لیں, پوری پہن لیں, پینٹ پہن لیں یا شلوار پہن لیں, تو تھوڑا اگر کپڑا زیادہ لگ جائے گا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہ جو شارٹ کا آج کل رواج نکلا ہے وہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے. دوسرا ہے کہ فیشن کرنی چاہیے, لیکن جیسے کہ بتایا گیا جو ہم پہ جچے, جو شریعت کے تابع ہو اور جو اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک جائز ہو. ضروری نہیں کہ جو جدید فیشن چل رہی ہے وہ ان سارے تقاضوں پہ پورا اترتا یا اترتی ہو. پیمانہ آپ نے سیٹ کرنا ہے کہ اپنی ثقافت کے اعتبار سے, اپنے اوپر جچنے کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہو. پھر تکبر, اچھی فیشن کے چکر میں لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ چیز پہنوں گا لیکن تم سے بہتر پہنوں گا. دل میں بھی خیال ہوتا ہے, بعض اوقات بول بھی دیتے ہیں کہ یہ جو تم نے چیز لی ہے فلاں جگہ سے لی ہے, میں اس سے اچھی جگہ سے لوں گا, اچھے برانڈ سے لوں گا. تو تکبر کا بھی عنصر نہ ہو, تو فیشن میں اچھا دکھنے میں, پیارا دکھنے میں, اچھے بال ہوں آپ کے, اچھے کلرز کے آپ ڈریس پہنتے ہوں, آپ کے شوز اچھے ہوں, چپل اچھے ہوں, آپ کی گھڑی اچھی ہو, تسبیح اچھی ہو, ہر چیز آپ کی اچھی ہو, میری اچھی ہو. یقیناً یہ میرے لیے جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے کہ میری پرسنالٹی میں, میری شخصیت میں, آپ کی پرسنالٹی میں, آپ کی شخصیت میں اضافہ کرتی ہے. اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد شہروز قادری صاحب کلام پیش کریں گے اور اس پر اس پروگرام کا ہوگا اختتام. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. سبحان اللہ. تمہارے کے ٹکڑوں سے پلا پھرتا ہے ایک عالم. واہ واہ. تمہارے کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ایک عالم. گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج واہ واہ واہ, بے شک. سے گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے. نہ کیوں کی طرف اللہ سو پیار